सबको जी। सो अनीमिया का आज हमारा टॉपिक है। वी हैव थ्री प्रेजेंटर्स, तस्मिया, आई कैन सी, रफिया और रुखसाना। आई थिंक वो भी आ रहे होंगे। सो मेरा ये प्लान है कि आज हम अनीमिया के डिफरेंट सिनेरियोज कर लेते हैं। अगर आज ही कवर हो गया तो अच्छा है, वरना गायनी में भी अनीमिया कवर कर लेंगे, राइट, नॉट ओनली नॉब्स। तो जी तस्मिया, आपके पास है यस कोई मैम। सिनेरियो? हाँ नहीं मैडम, आप दे दें प्लीज। चलो ठीक है। टू बिगिन विद, आपसे हम ऑब्स्टेट्रिक्स ही ऑफ कोर्स स्टार्ट करेंगे। सो पेशेंट इज प्राइमी ग्रेविडा and she is at 28 weeks of gestation, and she has come with the report of hemoglobin showing 8 grams per deciliter. How will you proceed? यस Structured मैडम। discussion. ओके मैडम। मैडम, after mutual introduction and confirmation of the information provided to me, I would like to ask my patient about how long she is married, and to confirm her LMP, regularity of the cycle, gestational age. Then I would like to ask her about the symptoms. Does she has any symptom of weakness, easy fatigability, lethargy, shortness of breath, and any history of palpitation, and any history of palpitation? Then I would like to ask whether uh, uh, for which complaints he was advised this test, and details of that, elaboration of the that complaint further. Then I would like to ask her about her dietary habits, that is intake of meat, egg, milk, and green leafy vegetables. Then I would like to ask her about um, uh, her regarding her first trimester history of excessive nausea, vomiting, and hospitalization history for that complaint. Whether her this pregnancy is booked, does she has regular visits to the hospital, and was she prescribed hematinics, and was she compliant to the hematinic drugs, how she was taking, whether on the empty stomach, or whether on the empty stomach, and then I would like to ask her about any previous known bleeding disorder history in her or in her family, and any bleeding episode from any site of the body, and uh, any previous history of low hemoglobin, and any previous history of low hemoglobin. Then I would like to ask her about any history of abdominal pain, diarrhea, or digestion problem, any any, any known peptic ulcer disease, and any known peptic ulcer disease, any known respiratory problem for which she is taking drug, or any known cardiac problem for which she is taking any medicine. Then I would like to ask her any previous past surgical history, any treatment she has taken, for any treatment started for this complaint, or any treatment she has taken before this, or any history of IV treatment or blood transfusion history in this pregnancy for her low hemoglobin. Then I would like to ask her about menstrual history and history of heavy menstrual bleeding, and any known drug allergies, any known drug allergies, and a sport at home. Then I will move toward the examination for her weight and height to calculate the BMI, her pulse for any tachycardia, her blood pressure, and to look for the pallor on examination on the sclera, palms of hand, and any thyroid enlargement.
and her respiratory examination for any added sounds, her JVP and any any positive findings on cardiovascular examination, then I will move to positive and for any pedal edema, and then I will move toward the her abdominal examination to look for um, any scar mark and symphysiofundal height, lie, uh, um, lie and lie presentation, and estimated fetal weight and amount of liquor. Then I will move toward the investigation, which will include ठीक है, the एक herbal. मिनट। ओके, Yeah. गुड। ठीक है, इधर तक अभी क्योंकि जो मैंने इसलिए आपको पहले ये सिनेरियो दिया क्योंकि मुझे के फर्स्ट कैंडिडेट के साथ हम आधे घंटा हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन कर लें, फिर डिफरेंट सिनेरियोज की मैनेजमेंट्स। देखो, ये जो अनीमिया ये हर एक को ही आना है एग्जाम में, और ना सिर्फ एग्जाम में, डेली लाइफ में शायद दिन में कितनी दफा हमने ये सिनेरियोज फेस करने हैं। इसके अंदर योर हिस्ट्री हैज टू बी, जैसे कहते हैं ना, क्रिस्प होनी चाहिए आपका, एग्जैक्ट, आप टू द पॉइंट, क्लियर। अब बीच बीच में रुक रुक के करने की बात ही नहीं कि नहीं। अभी जो टोटल टाइम आपने लिया तकरीबन 5 मिनट्स लिए हैं हिस्ट्री एग्जामिनेशन बताने में, विच वाज ओके। इतनी इतनी बुरी टाइम मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह का सिनेरियो होगा जिसमें मैनेजमेंट भी डिस्कस करनी होगी, तो वो मोस्टली दो स्टेशंस में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट स्टेशन में हिस्ट्री एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशन की बात हो जाती है, और मैनेजमेंट दूसरे स्टेशन में डिस्कस हो जाती है। सो योर टाइम मैनेजमेंट वाज ऑल राइट, विच वाज नॉट वेरी बैड। बट अगर आप मेरे से पूछो अबाउट द हिस्ट्री इटसेल्फ, आई थिंक इट वाज जस्ट ओके। बहुत अच्छी होगी ही तो, क्योंकि नीमिया में हर बंदा फेल होकर निकलता है। उसकी वजह ये नहीं है कि शायद बहुत बड़ा स्टैंडर्ड उन्होंने रखा हुआ है, उसकी वजह ये है क्योंकि एनीमिया तो आप लोगों ने ट्रीट करना ही करना है, और ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया डन बाय यू हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम अ जीपी और फ्रॉम एनी सिंपल एमबीबीएस हु इज डूइंग क्लिनिक एनीवेयर। ठीक है, आपका एनीमिया जो होगा ट्रीटमेंट, वो सिर्फ रिप्लेसमेंट या उसके एचबी की करेक्शन नहीं होगी, आपका एनीमिया होगा उसकी कॉज को ट्रीट करने का एनीमिया, राइट। एक एक पेशेंट अगर 8 एचपी के साथ आई है और उसकी ट्रीटमेंट में किसी ने उसको ब्लड लगा दिया और एचबी 2 दिन बाद उसकी 10 भी हो गई है, तो दिस इज नॉट द ट्रीटमेंट फॉर एनीमिया। ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया इज टू नो द कॉज। ऐसा ना हो कि 2 दिन बाद 10 हो गया तो हफ्ते बाद फिर 8 हो जाए। ठीक है, असल तो हमने उसकी कॉज पे भी पहुंचना है। इस वजह से आपने उसको किस तरीके से अब ट्रीट करना है, इसके इसकी हिस्ट्री कैसे लेके चलनी है। देखो, किसी ने अभी चैट में ये क्वेश्चन किया है कि जब एग्जाम में सिनेरियो में 8 एचबी दिया हुआ है तो फिर हम कार्डियक सिम्टम्स और बाकी डिफरेंशियल्स क्यों ले रहे हैं। एक चीज तो ये कि नो डाउट सिम्टम्स अगर उसको हैं भी, अव्वल तो सिम्टम्स की बात ही नहीं हुई सिनेरियो, गिवन सिनेरियो में। लेकिन अगर उसको हैं भी तो हमने रूल आउट तो करना है, क्योंकि उसको साथ में कार्डियक प्रॉब्लम भी हो सकती है। दूसरी चीज ये कि अगर उसके सिम्टम्स जो है, हमने सिवेरिटी को, सिम्टम्स तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एनीमिया में, उसी के मुताबिक तो उसकी ट्रीटमेंट डिसाइड होनी है। तो लेकिन हमारी हिस्ट्री से देखो, जब आपका वाइवा हो रहा हो तो ऐसे ना हो कि आपको यही डिस्कशन में पूरा टाइम निकल जाए, जो कि मोस्टली कैंडिडेट्स के साथ होता है कि यही डिस्कस होता रह जाता है कि वेदर द केसेस ऑफ एनीमिया या कार्डियक पेशेंट का केस है। तो आपकी हिस्ट्री से ही चीज रूल आउट हो जाए कि आपका जो केस है वो एनीमिया का केस है। उसमें जब आपने सिम्टम्स पूछना शुरू किया, आपकी सिम्टम्स की सिवेरिटी का भी बताने के स्टाइल से पता चले। यानी कि अगर आपने स्टार्ट किया है तो फॉर एनीमिया, जैसे तस्मिया ने स्टार्ट किया कि आई वुड लाइक टू नो इफ शी हैज एनी वीकनेस व्हिच आई डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट डिड शी मीन बाय दैट। हाउएवर उसने कहा वीकनेस, फटीगेबिलिटी है वो। यस, एनीमिया के अंदर आप पहले फटीगेबिलिटी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, अनएबल टू डू रूटीन वर्क। हमारे कंट्री में आप पूछ सकते हो कि किचन का काम कौन कर रहा है आजकल घर में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बच्चे बच्चे कौन संभाल रहा है, बिकॉज सिवियरली एनीमिक पेशेंट कैन नॉट टेक केयर ऑफ अ चिल्ड्रन, उसको सांस ही इतना चढ़ा रहा है कि वो काम कैसे करे। ठीक है, सो आपने उसकी एनीमिया के पेशेंट में सिम्टम्स शुरू करने हैं इजी फटीगेबिलिटी से, लैक ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वर्क और इस तरह से। अगर पेशेंट कार्डियक पेशेंट है, आपको हिस्ट्री से कार्डियक पेशेंट लग रहा है या सिनेरियो में कार्डियक दिया, तो उसके सिम्टम्स का स्टार्ट आप करोगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पैल्पिटेशंस, रात को सोते हुए वो उठ जाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, उन चीजों से। सो पेशेंट अगर आपका एनीमिया का है तो आपने लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इजी फटीगेबिलिटी से शुरू किया, उसके बाद आप डेफिनेटली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और पैल्पिटेशंस की, क्योंकि एनीमिक पेशेंट को भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ पैल्पिटेशन होती है, लेकिन बहुत बाद में जाके, या तो वो बहुत सिवियरली एनीमिक होती है, बहुत कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होता है, तो फिर
ठीक है, तो सिम्टम्स को आपने इस तरीके से एलैबोरेट करना है। जैसे ही आपने सिम्टम्स को एलैबोरेट किया एंड यू हैव डिफरेंशिएटेड सिम्टम्स फ्रॉम द सिम्टम्स ऑफ अ कार्डियक पेशेंट, उसके बाद आपने कॉज ऑफ एनीमिया को 1 2 3 करके वहीं के वहीं रूल आउट करना है। तस्मिया ने कॉजेस तो रूल आउट किए लेकिन बहुत हैपेजिड, और कॉजेस आपने मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज से शुरू करना है। पेशेंट इज एट 28 वीक्स, आप उससे पूछो कि इफ शी हैज टेकन एनी आयरन टैबलेट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और नॉट, इफ नॉट तो क्यों नहीं ली। उसके अलावा आप उससे फिर उसकी डाइट का पूछो सबसे पहले। हमारे मुल्क में फिर वर्म इन्फेस्टेशन बहुत कॉमन है, तो आप उसको बाउल हैबिट्स का फौरन पूछोगे, और उसके या पाइका वगैरह का पूछोगे। उसके बाद आप उससे एचएमबी की प्रीवियस हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, थैलेसीमिया कंपैरेटिवली उसका इंसिडेंस कम है, बट यस अगर आप पहले भी पूछो बिकॉज शी इज प्राइमरी ग्रेविडा। प्राइमरी ग्रेविडा में 8 HB फर्स्ट प्रेगनेंसी में ही होना थोड़ा सा थैलेसीमिया को इंडिकेट कर सकता है, क्योंकि अगर प्राइमरी ग्रेविडा अगर आपके पास एनीमिक आती है, इवन लेस देन 10 आती है प्रेगनेंसी में, तो आइदर अगर वो लेट प्रेगनेंसी में आ रही है जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर में, तो मे बी शी हैज नॉट टेकन एनी ओरल मेडिसिन। लेकिन अगर वो अर्ली प्रेगनेंसी में लो एचबी के साथ आ गया, तो यू हैव टू बी अलार्म्ड। मतलब एक प्राइमरी के अंदर 9 HB फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर में इज अ वेरी अनयूजुअल थिंग। आइदर शी इज वेरी डिप्राइव्ड ऑफ डाइट, और शी हैज गॉट थैलेसीमिया या वेरी बैड वर्म इन्फेस्टेशन। ये वजूहात जिस तरह मैंने कहा कि सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है एनीमिया के अंदर, कॉज को एलैबोरेट करना। अगर आप हिस्ट्री में कॉज तक नहीं पहुंचे तो आप, आई डोंट थिंक दैट यू रियली डिजर्व टू पास योर वाइवा, क्योंकि आप पेशेंट को ट्रीट ही नहीं कर सकते हो। हिस्ट्री के एंड तक आपको पता हो कि आपके पेशेंट में क्यों अनीमिया हुआ है। उसको क्या वो आयरन मेडिसिन ही लेती रही, या वो उसे वर्म इन्फेस्टेशन था, या उसकी फैमिली हिस्ट्री कंसिडरिंग थैलेसीमिया पॉजिटिव है, तो मे बी यू आर सस्पेक्टिंग थैलेसीमिया। क्योंकि अगर आपका वाइवा शुरू हो जाता है और आपके वाइवे में वो ट्रीटमेंट पूछते हैं, यू जस्ट गिविंग ओरल आयरन और यू जस्ट गिविंग यू नो दे के आप फारिग हो गए, तो दैट इज नॉट द ट्रीटमेंट। अगर वो वर्म इन्फेस्टेशन का पेशेंट है, तो जब तक आपने वर्म इन्फेस्टेशन को ट्रीट नहीं किया, तो देयर इज नो पॉइंट इन ट्रीटिंग हर एनीमिया। सो ऑलवेज रिमेंबर, अनीमिया का डायग्नोसिस के साथ साथ कॉज इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर पेशेंट ट्रीट होता है, ठीक है। तो आपने हिस्ट्री के अंदर जब सिम्टम्स रूल आउट कर लिया, आपने उसके कॉजेज को रूल आउट कर लिया, जिसके अंदर आपने उसका आयरन ओरल लेती रही है, नई डाइट के क्या हालात है, प्रीवियसली एचएमबी थी या नहीं। अगर ये मल्टी होती तो हम इसकी प्रीवियस ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में स्पेशली पीपीएच या हेमरेज की हिस्ट्री ले लेते। इस प्रेगनेंसी में तो नहीं थ्रू आउट स्पॉटिंग रही उसको। तो ये सारा कुछ, और फिर वर्म इन्फेस्टेशन का ये आपने रूल आउट करके, फिर आपने उसके बाद जाना है आगे, क्या उसे कहते हैं, फिर अब तक वो क्या ट्रीटमेंट लेती रही है, क्या वर्कअप हुआ है, शी नोज के क्या कॉज ऑफ अनीमिया है, वो सारा कुछ। और यस, फिर इफेक्ट ऑफ, बिकॉज इट्स आल्सो सॉर्ट ऑफ अ मेडिकल डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी, तो यस इफेक्ट ऑफ दिस अनीमिया ऑन मदर और ऑन फीटस। फीटस के अंदर लकीली अनीमिया का इफेक्ट कोई होता नहीं है, इसीलिए कहते हैं अनीमिया वाली जो पेशेंट है, अनीमिया इन प्रेगनेंसी इज नॉट एक्चुअली अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बिकॉज इट डजंट हैव एनी इफेक्ट ऑन द फीटस डायरेक्टली, एक्सेप्ट के बहुत लॉन्ग टर्म में जाके कोई प्री टर्म या यस पीपीएच एट द टाइम ऑफ बर्थ हो सकता है, लेकिन आईयूजीआर या आईयूडी या मेकोनियम ऐसी कोई चीजें अनीमिया की वजह से नहीं होती। तो इसलिए फीटस के अंदर आप, यस अगर पेशेंट को बताना चाहो कि कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, तो फिर वो प्री टर्म हो सकता है, मल्टीपल इन्फेक्शन हो सकती है, और मदर के अंदर एट द टाइम ऑफ बर्थ पीपीएच। पीपीएच इसलिए क्योंकि पहली एच बी कम होगी, तो जाहिर बात है थोड़ा सा भी ब्लड निकलेगा तो वो और एज बिकम, एंड देन उसकी मसल्स में इतनी टोन नहीं होती यूट्रस की कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके, तो शी इज मोर प्रोन और एट हाई रिस्क टू गेट पीपीएच, ठीक है। तो ये रिस्क फैक्टर्स हो जाते हैं। तो जब आपने हिस्ट्री लेनी है, आपने उसके अंदर अदर देन द प्रेगनेंसी हिस्ट्री, जिसके अंदर डेफिनेटली सारा उसका बायोडेटा है, उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर की हिस्ट्रीज है, एंड देन उसके वेदर शी हैज टेकन ओरल आयरन और नॉट, इफ नॉट तो व्हाई नॉट, वेदर उसका कभी प्रिस्क्राइब ही नहीं हुआ, या क्या फिर उसकी डाइट को बहुत एलैबोरेट करना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो सारा कुछ आपने कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जब एग्जामिनेशन है, देखो एग्जामिनेशन के अंदर अब एक हिस्ट्री ने ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना दिया, हिस्ट्री हैज नॉट मेड दिस थिंग ब्लैक एंड व्हाइट दैट शी इज नॉट अ कार्डियक पेशेंट। हमारा ओवरऑल डायग्नोसिस डिपेंड करता है हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशंस पे। सो टिल द इन्वेस्टिगेशंस आर देयर एंड कंफर्म डायग्नोसिस इज मेड, वी हैव टू गो विद द डिफरेंशियल्स। और अनीमिया के सिम्टम्स सारे ओवरलैप करते हैं विद द कार्डियक डिजीज, राइट। सो आपने जब पेशेंट का एग्जामिनेशन करना है एनीमिया में, तो यस यू विल डेफिनेटली चेक फॉर कोइलोनिकिया एंड पैलर एंड द ब्लड प्रेशर एंड पल्स, यू विल चेक फॉर जीवीपी ऑल्सो,
ठीक है, ओरल हाइजीन, पेशेंट के अल्सर्स होते हैं, मे बी B12 डेफिशिएंसी एनीमिया हो या फोलेट की डेफिशिएंसी हो, अभी तक तो हमारा कोई डायग्नोसिस बना ही नहीं ना कि वो उसे है क्या। तो आपने उसकी ओरल हेल्थ सारी देखनी है, अब थायराइड भी ठीक है देख लो, बट यू हैव टू डू कंप्लीट कार्डियक एग्जामिनेशन, जैसे कि एक पूरा किया जाता है, क्योंकि आपने उसकी एडेड हार्ट साउंड भी देखनी है, S1 S2 के अलावा उसके मरमर्स चेक करने हैं, पैल्पेबल मरमर भी होते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा, क्योंकि अभी तक हार्ड एंड फास्ट नहीं हुआ कि ये एनीमिक है या कार्डियक है, ऑल्दो यू आर गोइंग मोर टुवर्ड्स एनीमिया, उसको HB दी हुई है उन्होंने, बट व्हाट इफ द पेशेंट इज गोइंग इन कार्डियक फेलियर बिकॉज ऑफ एनीमिया इटसेल्फ। तो आपने एक कार्डियक एग्जामिनेशन जरूर करना है, स्पेशली ये पेशेंट ने मुंह से बोल दिया, अगर तो उसे मुंह से बोल दिया कि उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और पैल्पिटेशंस है, फिर तो वैसे ही आप कार्डियक एग्जामिनेशन के बगैर इसमें पास नहीं हो सकते। JVP इज वेरी इंपॉर्टेंट इसमें भी, और उसके बाद आपका ऑब्स्टेट्रिकल एग्जामिनेशन पूरा हो जाएगा, ठीक है, बस एडीमा बस वगैरह। 1 मिनट ठीक है, 2 मिनट। सॉरी मैं म्यूट कर देती हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से आपने करना है। उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेशन, अभी तक कोई हिस्ट्री एग्जामिनेशन में किसी ने कुछ बात करनी है तो बोल दे, फिर हम इन्वेस्टिगेशंस पे आते हैं। ठीक है, चलो अगर किसी का हो तो मैम हैंड रेज कर जो दो। मैम ये जो हम कार्डिक कंप्लीट एग्जामिनेशन आप कह रही हैं, इसमें जो हम पैरास्टेनल हीव वगैरह चेक करते हैं, वो तो नहीं चेक करनी ना हमें? सिर्फ हम देखो सिर्फ अगर इसको। तो एग्जाम में पेशेंट है, देखो अगर तो वाकई वहां पेशेंट बैठा हुआ है एंड यू आर टेकिंग हिस्ट्री, और आपका वो स्टेशन ही एनीमिया के पेशेंट के साथ हिस्ट्री एग्जामिनेशन का है, शॉर्ट तो you केस है। have to perform complete cardiac examination also because you don't know if she's a cardiac patient or not। ठीक है, 2 सेकंड भी नहीं लगते जब पे इंस्पेक्शन और पल्पेशन करते हो और फिर ऑस्कल्टेशन कर लेते हो, राइट। तो ये तो आप मैम वो जो एक्सप्लेन हम कर, प्रिकॉर्डियल इंस्पेक्शन करते हैं एक्सपोज करके, वो भी हम करेंगे और पैल्पेट करेंगे कार्डियक का पैरास्टेनल फिर हीव। पूरा एग्जामिनेशन होता है ना, क्या पता उसकी कोई कार्डियक सर्जरी हुई हो, जब आप राइट। एक्सपोज करो तो इतना बड़ा ओपन सर्जरी का निशान हो चेस्ट पे, हो नहीं ओके सकता। मैम, ओके, यस मैम, थैंक यू। जी, फायजा ने क्या क्वेश्चन करना है? मैम मैंने ये पूछना था, जो हम एनीमिया की सिविरिटी के लिए क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको सीढ़ियाँ चढ़ने पे सांस चढ़ता है, या उसकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के लिए जो हम यस, 4 1 2 3 4 के लिए जो पूछते हैं। देखो जब तक प्रूव नहीं हो जाता कि शी इज अ कार्डियक पेशेंट और एन एनीमिक पेशेंट, आपने दोनों की हिस्ट्री लेनी है। ऑल्दो एज यू नो पेशेंट हैज HB8, और इवन ड्यूरिंग हिस्ट्री आपको अंदाजा हो जाता है कि आपका पेशेंट कार्डियक है या एनीमिक है। आप अनीमिया की हिस्ट्री पहले लोगे, ज्यादा एम्फोसाइज करोगे, बट कार्डियक को साथ साथ रूल आउट करना है। इफ पेशेंट इज सेइंग शी इज हैविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यू हैव टू रूल इट आउट। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो इवन अनीमिया में भी उसकी सिविरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की वजह से ही तो आपने फैसला करना है कि इसको ब्लड लगाना है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, दिस पेशेंट विद 8 HP at 28 weeks says that she has got shortness of breath. You will ask her, अब आपका ध्यान है कि बिकॉज शी इज एन अनीमिक, आपको लग रहा है कि ज्यादा ये अनीमिया का केस है, तो HB भी दी हुई है, अदरवाइज ऑल्सो आप यू टेकिंग हिस्ट्री एंड यू थिंक दैट शी इज एन अनीमिक पेशेंट। इसके अंदर आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इस तरह जरूर पूछ सकते हो कि आप, क्योंकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हर पेशेंट को है, प्रेगनेंसी में स्पेशली हर कोई कहेगी मुझे सीढ़ियां चढ़ने पे सांस चढ़ता है, तो क्या आप हर एनीमिक को ब्लड लगा दोगे? नहीं। आप उससे पूछोगे कि किचन में काम कौन कर रहा है, आपके बच्चों को कौन पकड़ता है, मतलब यू नो severely anemic patient who is really symptomatic cannot even run after her children, or she cannot do any work in her kitchen। हमारे जो कंट्री में अगर देर इज अ लेडी जिसका घर में किचन का काम भी किसी और को आके करना पड़ रहा है, तो या यू नो शी somebody else has to be there in her house to take care of her children because she is really severely anemic, इस हद तक कि उसके सिम्टम्स हैं, या वो बताती है अपनी तकलीफ कि मुझे तो इतना सांस चढ़ता है कि मैं तो अपने बच्चे को नहीं पकड़ सकती, देन शी नीड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्योंकि सांस तो हर एक को चढ़ता है, सीढ़ी चढ़, वो आप पूछोगे सीढ़ी चढ़, हाँ जी, बैठे बैठे तो अनीमिया में नहीं ना, वो तो जाहिर है जब मूव करेगी, किसी बच्चे को पकड़ेगी, किचन तक जाएगी तो सांस चढ़ेगा, और इतने सिम्टम्स होते हो जाते हैं कि वो ये कर ही नहीं सकती। तो आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन का फैसला बड़ा सोच समझ के करना है अनीमिया में, ऐसे नहीं कर देना कि बिकॉज शी इज गॉट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आई विल गिव हर ब्लड, नो, बिकॉज शी कैन नॉट डू एनीथिंग एट होम। ठीक है ना, इस वजह से शी इज रियली सिम्टोमेटिक एंड शी नीड्स ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और अनीमिया में इंटरेस्टिंग बात यह है कि HB जितना मर्जी हो, बेशक 5 हो 6 हो, एक ब्लड लगने से पेशेंट के सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं। एक ब्लड लगाया, अगले दिन जाके आपने मेरे पेशेंट से मिले, वो उसी वक्त कहेगी कि मेरे मेरी मुझे तो होश आ गई जिंदगी में। और अगर थोड़ा सा उसे अभी भी बाकी है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और शी हर HP इज लाइक 5 और 6 और समथिंग, तो उसे एक ब्लड और लगाओ, उसके बाद ठीक हो जाए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे सिम्टम्स।
अगर उसके सिम्टम्स ठीक नहीं होते एक ब्लड के बाद या 2 ब्लड के बाद, देन इट मीन्स दैट हर कार्डियक इवैल्यूएशन नीड्स टू बी डन। शी इज हैविंग कार्डियक डिजीज, जिसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आराम नहीं आ रहा, उसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा कार्डियक रिलेटेड है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन एनीमिया। ठीक है, सो अनीमिया के अंदर जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात आए, वहां पे आपको सिम्टम्स की सिवेरिटी की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। और अनीमिया में आपने सिम्टम्स की सिवेरिटी पता करनी है कि किस हद तक काम वो कर सकती है, फिर ब्लड लगेगा। कार्डियक पेशेंट के अंदर आपने उसकी जो NYHA क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से डिग्री और सिवेरिटी ऑफ सिम्टम्स पता करने होते हैं, ताकि अकॉर्डिंगली आप उसको लेबल कर सको ग्रेड ऑफ द डिजीज। ठीक है, चलो, गुड। और किसी ने कोई क्वेश्चन करना है? जी, सो तस्निया इन्वेस्टिगेशंस पूछ लें। Madam, her baseline investigations, including her blood group and RH factor, and her complete blood count with date, including hemoglobin in gram per 8 है ना deciliter. इसमें? जी जी मैम. And her platelet count and total leukocyte नॉर्मल, count. वो नॉर्मल है। And sir, and ma'am, red cell indices, MCV, MCH, and MCHC. ये सारा हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक है। Ma'am, I need her serum ferritin levels. ठीक है, और Serum ferritin levels and her urine routine examination, including gross examination, microscopy, and biochemistry for any pus cells, glucose, protein, हम्म and her hepatitis B surface antigen and anti-HCV, and her fasting blood sugar levels, and her dating scan, anomaly scan for any gross anomaly, and her recent scan for fetal biometry, amount of liquor, and estimated fetal weight and placental localization. हम्म और मैम बस यही होंगे इन्वेस्टिगेशंस. बस HB8 है, तो आपने खाली RBC इंडिसेस मांगे हैं और सीरम फेरिटिन, बस। मैम HB electrophoresis, अच्छा, और मैम पेरिफेरल स्मेयर, पेरिफेरल्स में रोके, और सीरम फेरिटिन के साथ आप TIBC भी मांगते हो, सीरम आयरन भी मांगते हो आप। उसके अलावा जो है, व्हाट आई थिंक इज कि यस यू विल आस्क फॉर स्टूल टेस्ट आल्सो, गडीवर्म करने का आपने देखना है तो वो भी, बिकॉज दिस इज अ बिग थिंग फॉर यू के 8 HB है। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस आप हर एक में कराते हो? नहीं मैम हर एक में तो नहीं. फिर मैम अगर माइक्रोस्कोपिक हाइपोक्रोमिक पिक्चर है तो फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो फिर नहीं जरूरत है मैम. फिर तो और नहीं सीरम कराएंगे ना, इट्स नॉट इजी। जी. अब एक तो थोड़ा सा महंगा टेस्ट भी है, फिर इतना लंबा चौड़ा टेस्ट, मई हफ्ते बाद रिपोर्ट आती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इफ यू नो दैट MCHC इज आल्सो लो, ऑल द पैरामीटर्स आर शोइंग यू हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक पिक्चर, तो फिर तो आप बेशक उसको ना भी कराओ वो वाला टेस्ट। फिर HP ना कराओ, HP इलेक्ट्रोफोरेसिस। हाउएवर, एक तो आप उसकी डेट पता करो कि HB8 है तो कब की रिपोर्ट है, इज द लेटेस्ट वन। देन यू विल, आपको मैंने माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक दिया, RBC इंडिसेस, पेरिफेरल स्मेयर इज इम्पोर्टेंट, देन सीरम फेरिटिन। उसके अलावा इट्स बेटर टू गेट सीरम आयरन एज वेल एज TIBC डन। और हमारे तो कंट्री में स्टूल टेस्ट भी करा लिया जाता है टू रूल आउट वर्म इन्फेस्टेशन। और उसके अलावा बाकी तो ठीक है, आपने वायरल मार्कर्स शायद मांगे और यूरिन का मांगा, शुगर का मांगा, अल्ट्रासाउंड मांगा, और इट्स बेटर इफ यू आस्क फॉर द ट्रीटमेंट टिकट ऑल्सो, ताकि आपको पता चल जाए कि वो क्या अभी तक लेती रही है मेडिसिन या नहीं लेती रही, तो वो सारा कुछ ठीक है। और किसी ने कुछ ऐड करना है? मैडम अगर हम HP इलेक्ट्रोफोरेसिस पूछें तो फिर उसकी क्या जस्टिफिकेशन हो सकती है प्राइमरी ग्रेविडा में? प्राइमरी ग्रेविटा के अंदर अगर आप HP इलेक्ट्रोफोरेसिस कह भी देते हो ना, तो आप कह सकते हो कि इट्स वेरी रेयर टू सी 8 HB इन अ पेशेंट हु हैज गॉट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और जिसकी आपको हिस्ट्री में डाइटरी इंटेक भी ठीक मिला है, या कोई ओरल आयरन भी वो लेती रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
और दूसरी चीज, लेकिन अगर आपका एमसीवी और एमसीएच दोनों लो है और एमसीएचसी भी लो है, तो और साथ आपका सीरम आयरन, सीरम फेरेटिन, दे ऑल आर शोइंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, तो इट्स बेटर दैट यू डोंट गेट एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस डन इन एवरी पेशेंट। तो लेकिन अगर एमसीएचसी नॉर्मल रेंज में आ रहा है तो फिर यस, फिर तो आप डेफिनेटली कराओगे ना। और सेकेंडली ये कि अगर आपका फिर भी मूड है कराने का, अच्छा कुछ लोग कराते हैं, कुछ लोग हर अनीमिया के अंदर रूल आउट करते हैं, स्पेशली प्राइमरीज में, बेशक एमसीएचसी भी लो। फिर आप ये भी जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि कुछ मिक्स्ड पिक्चर भी होती है, जिसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अलॉन्ग विद थैलेसीमिया होता है। सो उसके अंदर, बिकॉज प्राइमरी के अंदर थैलेसीमिया रूल आउट हो जाना बहुत जरूरी है, कंसिडरिंग द जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज, और थैलेसीमिया मेजर ना हो रहा हो, तो इस वजह से तो यू भी आप जस्टिफाई कर सकते हो। ठीक है। और मैडम ये मैम जो सीरम फेरेटिन है ये डायग्नोस्टिक है फॉर आयरन डेफिशिएंसी, तो फिर भी हमने आयरन स्टडीज करवानी है, जैसे आपने कहा टोटल आयरन आयरन स्टडीज बाइंडिंग करवा कैपेसिटी लो, और सीरम आयरन। क्योंकि उसका एक वर्कअप कंप्लीट हो जाए तो बहुत बेहतर है। यस, हम अपने डिपार्टमेंट्स में कई दफा सिर्फ सीरम फेरेटिन कराते हैं या टीआईबीसी भी करा लिया जाता है, बट इट्स बेटर टू गेट ऑल द स्टडीज डन। एग्जाम में आपने सारी करानी है, बेहतर मैम है। मैम हम लोग इस तरह प्रोसीड कर रहे होते थे, अगर पेशेंट को हम आईवी आयरन देते थे और उसके करेक्ट नहीं हो रहा था तो रेड सेल फोलेट और एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस फिर हम करा लेते थे, चाहे उसके डायसिस लो भी हो, क्योंकि वो इट इसी इज वजह वेरी से रेयर। कि साइड बाय साइड। देखो, ये मैं बताती हूँ, ये जी आपका मैम। क्लिनिकल एक एक्सपीरियंस है। हमने अभी एग्जाम के अंदर वही चलना है जो कि मोस्टली मे बी मोर देन 90% पेशेंट्स वार्ड में आप करते हो। आईवी आयरन से भी एचपी ठीक ना होना बहुत रेयर चीज है इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इट डज नॉट हैपन। यू डोंट नीड टू जस्टिफाई योर एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस रिपोर्ट जस्ट बिकॉज द एनीमिया इज नॉट करेक्टेड बाय आईवी आयरन। अगर वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, आपका सीरम फेरेटिन भी लो आ रहा है, आरबीसी इंडिसेस भी आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं, तो आईवी आयरन विल डेफिनेटली करेक्ट इट। मतलब वो किसी ओरल आयरन में तो फिर भी शक है कि एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आई डोंट थिंक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज नॉट करेक्टेड विद आईवी आयरन। तो वो तो हुई, इवन थैलेसीमिया के अंदर भी अगर आयरन डेफिशिएंसी आ गया है और आपने उसको, खैर आईवी आयरन तो नहीं देते, ओरल भी दे, तो मे बी उतनी एचपी इम्प्रूवमेंट तो नहीं, लेकिन कुछ तो वो बेहतर रहता ही है। तो लेकिन यस, तो एचपी इलेक्ट्रोफोरेसिस की जस्टिफिकेशन में ये जस्टिफिकेशन गलत है कि बिकॉज आयरन, बिकॉज एचबी इज नॉट करेक्टेड विद आईवी आयरन। आईवी आयरन लगा के हम ये जस्टिफाई नहीं कर सकते। आईवी आयरन इज अ ट्रीटमेंट विच इज गिवन आफ्टर डेफिनेटिव डायग्नोसिस। जी खिसरा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम क्या हम इसको इस बात से थ्योरेटिकली जस्टिफाई कर सकते हैं कि हम मीन्सर इंडेक्स कैलकुलेट करें और जो कि मीन कर्पस्कुलर वॉल्यूम और आरबीसी का रेश अगर वो 13 से लेस आए तो फिर हम एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस के टूवर्ड्स प्रोसीड करें, क्योंकि उसमें फिर बिल्कुल कर बेसिकली सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर जस्टिफिकेशन एमसीएचसी की वैल्यू है। अगर एमसीएचसी की वैल्यू लो है तो इट्स शोइंग मोर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जो आपने बात की गुजरा, दैट्स अगेन एज अ, वो चीज है जो बहुत कम की जाती है क्लिनिकली और डिपार्टमेंट्स में, बट आई एम श्योर जिसके अंदर वाकई जस्टिफाई होता है उसके अंदर उसकी वैल्यू उतनी आती होगी जैसे आपने कहा। तो आप कह सकते हो, लेकिन मेक थिंग्स सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इजी फॉर योर सेल्फ इन एग्जाम, मेरी तो यही एडवाइस है। तो वही बात करो जो आप क्लिनिकली या जो डिपार्टमेंट में आपके सारे बड़े भी कर रहे हैं और आप लोग भी कर रहे हो, विच इज दैट वी जस्ट सी द आरबीसी इंडिसेस and the peripheral smear. Peripheral smear is showing hypochromic microcytic, and RBC indices all are lower than the normal. Go for the iron studies and treat accordingly. If there is any doubt considering MCHC, so get the HP electrophoresis done. ठीक है ना। फिर कुछ जगहों पे इतना इजी होता नहीं है। वैसे अब तो इतना मुश्किल रहा नहीं, बट कई दफा ना एग्जाम में बड़ी मिक्स सी पिक्चर दे दी होती है, जिसमें एमसीवी जो है थोड़ा हायर होता है, एमसीएच लो होता है, एमसीएचसी भी लो होता है। देयर इज अ सॉर्ट ऑफ अ मिक्स्ड पिक्चर एंड यू डोंट नो एग्जैक्टली द डायग्नोसिस कि वो किस तरफ जा रहा है।
तो एक बात याद रखो कि जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है उसके अंदर तो एमसीवी ज्यादा ही होगा। बाकी चीजें तो जो बाकी भी मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन वो सारा कुछ लो होगा, लेकिन एमसीवी ज्यादा होगा। बट जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है ना, ये बड़ी मैं रेयर सी बात कर रही हूँ, जिसके अंदर बहुत मिक्स्ड और कंफ्यूजिंग किस्म के आपको ये आरबीसी इंडिसेस मिले, तो उसमें स्टेजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी होता है, जिसके अंदर मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम कम होना शुरू हुआ होता है। शुरू में एमसीएच थोड़ा हायर साइड पे होता है, उसकी वजह से एमसीएचसी भी थोड़ा हायर साइड पे होता है, देयर इज अ मिक्स पिक्चर। बट वंस देयर इज एमसीवी लो, इट्स अ माइक्रोसिटिक एनीमिया। एमसीवी हाई, इट्स अ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। जी उमारा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम सलाम जी। मैडम ये मुझे ये पूछना था कि स्टूल आरी फॉर ओवर एंड सिस्ट जो है वो हमने करवाना है अगर करवाना सस्पेक्टेड है, आयरन डेफिशिएंसी या करवाना है, एनी। हमारे मुल्क में तो कराना है। ठीक है मैडम। या फिर मैडम और कोई पेशेंट वैसे भी क्रॉनिक हम डिजीज की हिस्ट्री दे रही है, या कोई पेशेंट मलेरिया की हिस्ट्री की तरफ जा रहा है, तो फिर मलेरियल पैरासाइट भी कराना है। हमारे कंट्री में ये चीजें कॉमन है, इसलिए वर्म इन्फेस्टेशन, मलेरिया, ये एनीमिया की बड़ी इंपॉर्टेंट कॉजेज है। तो आपने स्टूल तो कराना है, स्टूल एग्जामिनेशन वर्म इन्फेस्टेशन के लिए। और आप जो है अगर पेशेंट क्रॉनिक डिजीज की हिस्ट्री दे रही है या फीवर की हिस्ट्री दे रही है, तो आप मलेरिया को भी रूल आउट कर सकते हो। जी कुलसूम। मैम मुझे ये पूछना था कि जो आयरन स्टडीज है तो उसमें हम सीरम फेरेटीन, टीआईबीसी, आयरन, सीरम आयरन सारे करवाएंगे या जस्ट? करवाए, एग्जाम में बोल दो। देखो ये जो थ्योरेटिकल बातें हैं ये ऐसी नहीं बुक में लिखी हुई है, और हमारे मुल्क में इजीली हो जाती हैं। इट्स बिकॉज क्या आपको एक कंप्लीट वर्कअप मिलेगा। टीआईबीसी ये चीजें आपको कंफर्म करती हैं दैट इट इज आयरन डेफिशिएंसी, और किस हद तक। जाहिर बात है टीआईबीसी उसका बहुत हाई होगा अगर वो बहुत लो आयरन के साथ है, तो आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बहुत हाई होगी। कुछ पेशेंट्स में जरा अर्लियर आयरन डेफिशिएंसी होती है, उसमें अभी टीआईबीसी इतना ज्यादा नहीं कम हुआ होता। अच्छा, कुछ पेशेंट्स में सीरम फेरेटिन बड़ा लो होता है, लेकिन सीरम आयरन थोड़ा नॉर्मल रेंज में आ रहा होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उससे आपको मजीद जस्टिफाई होगा कि किस सेवेरिटी का है। तो देर इज नो हार्म कि एक बेसलाइन आप ये सब बोल दो। ठीक है। जी मैम। मैम और जो स्टूल फॉर ओवर और सिस्ट हैं वो अगर सिम्टम्स मिलें तो हम करवाएं या फिर वैसे भी करवा सकते यार हैं? मेरा तो मशवरा ये है कि करा ही लो, बिकॉज कई पेशेंट्स इतनी इग्नोरेंट होती हैं, दे डोंट के। और पाइका की हिस्ट्री तो मोस्टली दे ही रही होती हैं जिनको वर्म इन्फेस्टेशन का प्रॉब्लम होता है। तो इट्स बेटर कि आप एक दफा, हम देखो, बात सच सही बात बताऊं, प्रैक्टिकली व्हाट यू डू, यू कैन जस्ट गिव डीवर्म मेडिसिन। 3 दिन की दवाई है, सुबह शाम की वर्मॉक्स, आपका वो ट्रीट हो जाता है। सेफ 100 mg की, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। बट एग्जाम में यू हैव टू जस्टिफाई, तो एंड यू कैनॉट मिस इट। इट इज सो सो इम्पोर्टेंट कि आप उसको ट्रीट किए जा रहे हो, और उसका वर्म की वजह से एच बी कम ही जा रहा है। तो आप उसको एक दफा रूल आउट कर लो, या फिर आप बगैर इन्वेस्टिगेशन के मेडिसिन दोगे तो वो एग्जाम में ठीक नहीं बात होगी। तो आप उसका स्टूल का करा लोगे एग्जाम में टेस्ट। ठीक है ना। थैंक यू मैम। वेलकम। ओके। सो अभी वो ट्रीटमेंट से रिलेटेड बड़े क्वेश्चंस के आप लिख रहे हो चैट में, वो भी हम मैनेजमेंट करते हैं क्विकली, तो उसी में हो जाएगा। सो इन्वेस्टिगेशंस में तो आई थिंक इतना ही है। और अगर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसी में आएगा तो भी क्विकली पूछ लेते हैं क्या टेस्ट कराएंगे। ट्रीटमेंट जो है ना, हमारी दूसरी कैंडिडेट करेंगी, राफिया या रुखसाना में से। जी तस्निया, अगर मेन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम ज्यादा आता है तो क्या टेस्ट होंगे? मैम मीन corpuscular volume, मैम on peripherals where hypersegmented neutrophils and serum folate levels and vitamin B12 levels. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। गुड। ठीक है, सो गुड। चलो जी, फिर अब हम मैनेजमेंट इसकी कौन करेगा? हमारी दूसरी कैंडिडेट्स आएंगे, राफिया या रुखसाना में से? अगर अभी नहीं है तो तस्मिया आप ही कर दो मैनेजमेंट। जी मैडम। Ma'am, management of patient will be according to ma'am history and examination and investigations. Ma'am, on history, I will confirm whether my patient is compliance with was compliance with medication or not, whether she is symptomatic or not,
And She is not symptomatic. She's not symptomatic and she's not compliant. and It's her first visit to any doctor. Matlab, she has not taken any medicines before because it's ma'am, her then I first would like visit. to ask why she was not compliant to the medication, whether she has any वो side बता effect. रही है ना patient, it's her first visit to any doctor. Okay, ma'am. Ma'am, then I would like to ask why she was not compliant with her medication, whether she has any side effects with the oral intake, or she was and whether she was able to buy her medications or not. Because, ma'am, we have to decide whether she can take oral preparation or IV वो कह रही parenteral है वो iron. किसी डॉक्टर के पास ही नहीं गई, उसको कभी कोई एडवाइस ही नहीं हुई मेडिसिन. Okay, ma'am. Ma'am, then first of all, I will counsel my patient regarding the diagnosis that she has pregnancy with anemia, and it has its associated implications to the mother and the fetus. The mother implications are that she is at risk of developing preeclampsia. She's at risk of infections and postpartum low immunity, repeated infections, and dysfunctional labor, and PPH, and worsening of her symptoms. And is at risk of low birth weight, preterm delivery, and prematurity. And she is also at risk of later on postpartum endometritis. So I will counsel her that as she was not using any medication, so I will prescribe her oral iron therapy, therapeutic dose of oral iron. That is the ferrous sulfate, 200 milligram, and I will advise her to take on empty stomach. And if there are any side effects, then she can take it with the meal. And I would tell her to take it preferably with the iron juice to increase its absorption, or with vitamin C, and to avoid it taking with calcium, or with milk or tea. And I will counsel her that we will repeat her test after 3 weeks, and after 3 weeks to see the improvement in her hemoglobin. Then I will ask her about improvement in her on follow-up visit. I will ask her about improvement in her symptoms, and will repeat her hemoglobin. And if her hemoglobin is improved, then I will advise her treatment for further 3 months. And ठीक है. So if this patient was given oral iron and she is taking oral iron but HB is 8, how will you proceed? ma'am, I will check the compliance by asking her about dark color stools, and and ma'am, I will re-evaluate her for the diagnosis of iron deficiency, for the diagnosis Very of good. anemia. ठीक है. फिर और आगे, she is having iron deficiency anemia. He is taking oral iron according to her, but HB is still 8. Yes, ma'am, I would like to deworm my patient. वो तो हमने Deworm. ठीक है. And और also, ma'am, मैम for फोलेट लेवल से erythropoiesis, folic acid supplementation along with iron. ठीक है. और मैम यही देखो दो 2-3 रीजन. बातें. ओके. 2-3 बातें.
सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा कि पेशेंट वाज नॉट कंप्लायंट, या इन अदर वर्ड्स शी वाज नेवर एडवाइज्ड ओरल आयरन बिफोर शी इज एट 28 वीक्स। मैंने शायद किसी एक और क्लास में आप लोगों को बताया था कि आयरन की मैनेजमेंट में आपने किस तरह बोलना है। सबसे पहले आपने माइंड में ये कैलकुलेट करना है कि आपके पास कितना टाइम है टिल बर्थ, नंबर वन, क्योंकि आपको तो डिलीवरी के टाइम पे एचबी ठीक चाहिए। बेसिकली एंटीनेटल विजिट्स का तो मकसद ये है ना कि आप एचबी अपनी डिलीवरी के टाइम पे ठीक रखना चाहते हो, क्योंकि इसका एक ही रिस्क है एनीमिया का, विच इज पीपीएच। ये पोस्टपार्टम एंडोमेट्राइटिस, और ये आई डोंट नो, ये बातें भी बोल के आप अपना ही वाइवा खराब करोगे, ठीक है। सो आप टू द पॉइंट रहो। अब आपने ये पहले कैलकुलेट करना है कि शी इज एट 28 वीक्स, यू हैव 3 more months, विच इज अ लॉन्ग टाइम टू ट्रीट हर एचपी। दूसरी चीज, व्हाट इज द कॉज ऑफ एनीमिया? इट इज आयरन डेफिशिएंसी। तीसरी चीज आपने क्या माइंड में देखी? आपने कहना है कि इफ इट इज आयरन डेफिशिएंसी एंड यू हैव 3 months, वेदर शी इज कंप्लायंट और नॉट, यू नो शी इज नॉट कंप्लायंट, तो फिर आपने क्या करना है? फिर जाहिर बात है, पहले तो आप उसे ओरल आयरन दोगे, उसकी इंपॉर्टेंस बताओगे कि यू हैव टू टेक इट, अदरवाइज ब्लड लग सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया, यू कैन इवन डाई, एटसेट्रा एटसेट्रा। इट्स एक्सपेंसिव थिंग। ब्लड लगाना सरकारी हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा मुश्किल ख्वारी, पेशेंट का पूरे पूरे पता नहीं दिन लग जाते हैं वहां ब्लड बैंक की लाइनों में लग के, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और फिर ब्लड लगता है, एंड व्हाट इफ रिएक्शन अकर्स। और प्राइवेट में तो अगर आप चैरिटी पे भी ब्लड लगाओ तो 7-8 हजार तो वैसे ही खर्चा हो जाता है पेशेंट्स का। सो इट इज नॉट इजी टू गेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन डन। सो वो तो है भी बहुत बुरी चीज, एग्जाम में ब्लड लगाना बहुत ही बुरा समझा जाता है दुनिया भर में भी, और आपने ब्लड लगाना भी नहीं है। सो आपने पहले ये चीजें देख ली कि कितना टाइम है उसके पास, शी इज कंप्लायंट और नॉट, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, तो आपने उसको ओरल आयरन दी। हाउ विल यू चेक कंप्लायंस ऑफ दैट ओरल आयरन दैट यू हैव गिवन टू हर? You will call her back after 10 days with another hemoglobin report, right? कुछ लोग कहते हैं मैं रेटिकुलोसाइट काउंट कराऊंगा, etc etc. There is no point in getting a reticulocyte count done after 2 weeks or after 10 days, because वो एक बहुत मुश्किल इन्वेस्टिगेशन है, अगेन वो हर जगह नहीं होती, एक्सपेंसिव है, etc etc. सो आप एक सिंपल एचपी 10 दिन के बाद रिपीट करवा कर बुला लो, उससे बीडी आयरन दो, बिकॉज ऐसे पेशेंट्स में टीआईबीसी ज्यादा होता है, उनकी आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, नॉर्मल सी बात है। बिकॉज अच्छा, इट्स नॉट ओनली दैट, आपने उसको डाइट बहुत अच्छी एक्सप्लेन करनी है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट द डाइट दैट यू आर गोइंग टू टेल हर। आपको आयरन सोर्सेज आपको पता हो, रेड मीट और दूसरे मीट में क्या फर्क है, आपको पता हो कि आयरन की एग्जैक्ट आपने क्या, यू टॉकिंग अबाउट लाइक बीट रूट और एप्पल एंड मे बी खजूरे, और यू टॉकिंग अबाउट दिस रेड मीट, और वो आपने उसको प्रॉपर डाइट बतानी है। शी हैज टू टेक दैट, शी हैज टू टेक बीडी आयरन, क्योंकि नेचर की तरफ से जिनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी होती है उनके अंदर टीआईबीसी भी ज्यादा होता है। आपने थोड़ा सा बिफोर गोइंग टू एग्जाम, वेरी वेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन, B12, फॉलिक एसिड, ये आपने जरूर देखना है, क्योंकि यू कैन नॉट मैनेज और ट्रीट योर पेशेंट अनलेस यू डोंट नो वेयर आयरन इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, कौन से रिसेप्टर्स हैं, रेड मीट और व्हाइट मीट की एब्जॉर्प्शन में क्या फर्क है, कौन सी एब्जॉर्ब, व्हाई डू वी से, वैसे तो ये अजीब सी बात है, लेकिन वो कहते हैं ना जिसमें खून की कमी है उसे खून ही पिला दो। ये जो जो रॉ मटेरियल आयरन का होता है ना, ये जो रेड मीट या ब्लड इन इटसेल्फ, वो जिस तरीके से स्टमक में कितने रिसेप्टर्स क्रॉस करके डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है, इंस्टेड के जब आप दूसरे आयरन के, दूसरे एलिमेंटल आयरन वाले जो कम आयरन वाले सोर्सेस हैं, जब आप उनको देते हो, उसने पहले जाके स्टमक में किसी रिसेप्टर से मिलना होता है, वो कैरियर होता है, वो उसे लेके जाता है दूसरे रिसेप्टर पे, फिर वो नीचे जाता है ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम में जाके एक और रिसेप्टर से, फिर वो इंटेस्टाइन क्रॉस करके एब्जॉर्ब होके तो ब्लड में जाता है, कितने स्टेप्स आ जाते हैं। सो पैथोफिजियोलॉजी आपको बताओ एक चीज, दूसरी इसी तरह विटामिन B12 में, साथ साथ आपको मेगालोब्लास्टिक भी कवर करा रही हूँ क्विकली। उसकी वजह यह है कि ऑफ कोर्स मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी आ सकता है और पेशेंट्स भी होते हैं इसी तरह। सॉरी, म्यूट करेंगे आप लोग। डॉक्टर, ये कौन है? डॉक्टर आतिफ अमीन, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। यस। सो मैं आपको ये बता रही थी कि तो आपको ये पैथोफिजियोलॉजी, B12 में इंट्रिंसिक फैक्टर का बड़ा रोल है जो कि स्टमक के अंदर होता है। अगर आपके पास कोई पेशेंट क्लिनिक पे या एग्जाम में या अदरवाइज आपके पास आ रहा है जो जिसकी स्लीप गैस्ट्रेक्टमी हुई हुई है, पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी और टोटल गैस्ट्रेक्टमी में भी फर्क है। इंट्रिंसिक फैक्टर स्टमक के अंदर होता है, B12 में जिसकी कंप्लीट गैस्ट्रेक्टमी हुई है उसके अंदर तो डेफिनेटली B12 की डेफिशिएंसी है। सो इंट्रिंसिक फैक्टर जो स्टमक के अंदर है, वहां से जब तक वो नहीं उसको हेल्प आउट करेगा, उसकी एब्जॉर्प्शन आगे जाके
So it's not only the diet which is causing B12 deficiency, it's the intrinsic factor deficiency as well which can lead to this. तो आपने वो भी रूल आउट करना है। उसके अलावा आपको B12 की डाइट पता हो, आपको फॉलिक एसिड की डाइट पता हो, डिफरेंस ऑफ सिम्टम्स इन B12 डेफिशिएंसी एंड फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी का पता हो। B12 की डेफिशिएंसी में बड़ा टिपिकल सिम्टम है, जो कि वैसे तो ओरल अल्सर्स और बाकी गैस्ट्राइटिस और ये सारी चीजें आपके B12 में भी होती है, फोलेट में भी होती है। B12 में न्यूरोपैथी भी होती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो ये सारी चीजें। सो इसको बहुत इजी नहीं लेना नीमिया को। नीमिया की आपको पैथोफिजियोलॉजी से आयरन ओरली बस बॉडी के अंदर गया है तो उसके बाद आयरन के साथ क्या सलूक हो रहा है आपको पता हो। ब्लड में जाके फेरेटिन किधर जाके काम कर रहा है, टीआईबीसी का एग्जैक्ट मतलब क्या है, क्योंकि व्हेन यू नो दैट पेशेंट्स टीआईबीसी इज मोर विच मींस दैट ही इज हैविंग आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ऐसे पेशेंट में जब आप बीडी आयरन दोगे तो वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, ज्यादा जल्दी एचबी कम करेगी। अगर एक पेशेंट जिसका एचबी नॉर्मल है या जिसके अंदर टीआईबीसी इज नॉर्मल और हाई और मतलब नॉर्मल ही होगा, तो उसके अंदर अगर आप बीडी आयरन दोगे तो कोई फायदा नहीं है। आयरन एब्जॉर्ब उतना ही होना है जितने रिसेप्टर्स अवेलेबल है उसको रिसीव करने के लिए। तो रिमेम्बर दिस, बीडी आयरन आप किस में दे रहे हो, ओडी आयरन किस में दे रहे हो, एलिमेंटल आयरन उसमें से जितनी भी एब्जॉर्ब हो रही है, अगर ज्यादा रिसेप्टर्स हैं तो वो ज्यादा कैच करेगा, बीडी आयरन से बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। सो इस पेशेंट के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये ओपीडी में मैनेज करने वाला पेशेंट है, शी इज एसिम्प्टोमेटिक, इसके अंदर आप ओरल आयरन बीडी में देके 10 दिन के बाद एचपी रिपीट करके आप उसे बुला लोगे एंड यू विल चेक एचपी, इफ एचपी इज ऑन द राइजिंग ट्रेंड व्हिच मींस शी इज कंप्लायंट, राइट। कुछ लोग इस हद तक भी कंप्लायंस देख रहे होते हैं कि वो जब मेडिसिन के पत्ते देखते हैं, कितनी मेडिसिन उसमें से खाई गई, विच इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग थिंग टू डू इन ओपीडी। अगर पेशेंट थोड़ी इग्नोरेंट सी एंड और वो खुद नहीं आपको बहुत सारी चीजें बता सकती, तो आप इस हद तक भी जाके पेशेंट की कंप्लायंस चेक करते हो। हाउएवर एचपी अगर राइजिंग ट्रेंड में वेल एंड गुड, यू कैन कंटिन्यू द ओरल आयरन। उसको आप अगला महीना पूरा बीडी में दो, देन रिपीट योर इन्वेस्टिगेशन, इफ एचपी इज कमिंग टू द नॉर्मल साइड उसको ओडी पे कन्वर्ट कर दो, क्योंकि बीडी का फायदा ही नहीं फिर रहेगा ना। बीडी दोगे भी तो उतना ही एब्जॉर्ब होगा जितने रिसेप्टर्स अवेलेबल है, क्योंकि अब वो डेफिशिएंट कम हो गई है, अब उसका एचपी इज ऑन द नॉर्मल साइड, टीआईबीसी इज कमिंग टू द नॉर्मल रेंज। तो अब आप उसको डबल डबल आयरन भी दोगे तो देर इज नो पॉइंट। तो अब आप उसको ओडी में कन्वर्ट करके यू विल कंटिन्यू टिल डिलीवरी, उसका एचबी फिर 12 11 के अराउंड रहेगा एंड यू विल बी वेरी हैप्पी विद दैट। However, if HP is not increasing with BD iron, which means there is some problem in absorption, maybe very bad compliance, उसको किसी सूरत नहीं, तो अब आप उसको एक्सपेरिमेंट तो नहीं करते रहोगे ना कि जबरदस्ती उसको कंप्लायंट बनाने की कोशिश करो या वो करो। फिर आप उसको आईवी आयरन दे सकते हो, या ये भी हो सकता है कि वो ओरल ले भी रही है, शी इज कंप्लायंट बट एचपी इज नॉट राइजिंग, तो फिर इट मीन्स के उसके एब्जॉर्प्शन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आइदर कंप्लायंस इज नॉट गुड और देयर सम प्रॉब्लम इन एब्जॉर्प्शन। तो फिर आप उसका आईवी आयरन की तरफ जाओगे। उसकी वजह क्या है, जब आप ओरल आयरन की बात भी करोगे, अब इस पेशेंट में आप बात करोगे कि माय पेशेंट इज एट 28 वीक्स, शी हैज गॉट अराउंड 12 more weeks till the time of delivery. My target hemoglobin is at least 10.5 at this stage. Her HP is 8, she is asymptomatic and is having iron deficiency anemia. आपने ये पूरी स्टेटमेंट बोलनी है। ये सारे पॉइंट्स जब आप बोल रहे होगे तो आपके माइंड में एक पूरा प्रोसेस चल रहा होगा कि आप किस मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं। After saying all this, you will say that I will give her, because she is not compliant, she has not been given any oral iron before, so I will give her oral iron to BD in a BD dose and will call her back after 10 days with the latest report of HB. I will review the HP, her symptoms, and the whole patient again. If she's asymptomatic, HB is on the rising trend, I will continue this BD dose for another month, and then we'll repeat her HP, and the HP has come to the normal range, and we'll continue oral iron further in pregnancy. Meanwhile, I have also counseled her regarding diet. Diet वहाँ बोलो कौन सी iron rich sources हैं, किस तरीके से उसने लेना है. Your examiner should know that you know in detail the pathophysiology of iron absorption in the body and also storage. What do you exactly mean by serum ferritin? कहाँ जाके किस तरह स्टोर हो रहा है, ये आपने पैथोलॉजी की किसी बुक से ये सारा कुछ पढ़ना है। फायजा ने कोई क्वेश्चन पूछा है? हाँ बिल्कुल, आई थिंक शी इज रिपीटिंग द सेम थिंग इन चैट। सो ये आपकी सारी बात हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस पेशेंट के अंदर तो आप इस तरीके से लेके चलोगे। उसके बाद आपने अगर यही पेशेंट है फॉर एग्जांपल, अच्छा साथ आपने बोलना है, एग्जामिनर में आस्क यू दैट व्हाई हैव यू नॉट गिवन हर आईवी आयरन, या एट एनी स्टेज मे बी 32 वीक्स पे अगर आप ओरल दे रहे हो या किसी पे, तो शी विल आस्क यू दैट व्हाई हैव यू नॉट गिवन हर आईवी आयरन।
तो आप ये एक बात तो आपने अपनी स्टेटमेंट में ही जब बोल दी कि शी इज एसिम्प्टोमेटिक, शी हैज गॉट एडिक्वेट टाइम टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी एंड शी इज बी नॉन कंप्लायंट, तो आप आपका काफी उसके इस सवाल का जवाब उनको मिल चुका है, बट इवन देन यू कैन से दैट result or effectiveness of oral iron and IV iron is same. So there is no harm, as she said, she has been non-compliant and we don't know that absorption is good, maybe good in her stomach, तो I will give her oral iron along with the dye और उसी से वो ठीक हो जाएगा। अगर वो उसकी absorption नहीं हो रही, आयरन एच भी नहीं बढ़ा, रिपोर्टें वहीं की वहीं है, तो फिर मैं इसको IV आयरन दूंगी। और फिर वो किस तरीके से दूंगी, उसकी डोज आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, क्विकली बोलनी आनी चाहिए कि इतने मैं मिलीग्राम दूंगी, इतना ग्राम पर डेसीलीटर, इतने 2 हफ्तों में बढ़ जाएगा, वो सारा कुछ। और किस तरीके से दूंगी, कौन सी फॉर्म ऑफ आयरन देना है, कार्बोक्सी माल्टोज देना है, कौन सा देना है, वो सारा आपको डिटेल्स ऑफ IV आयरन 2 पेज की वो इन्फॉर्मेशन है, वो आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि आपने वीनोफर देना है या कार्बोक्सी माल्टोज देना है, वो सब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फॉर्म। इसी तरह आपको ओरल आयरन की भी हर फॉर्म पता होना चाहिए, फेरस सल्फेट है या क्या है, और कौन सा आयरन किधर जाके एब्जॉर्ब हो रहा है। और इंटरेस्टिंगली, if she's having nausea, few doctors try to change the brand, but interestingly वो ferrous sulfate ले या fumarate ले या वो जो भी ले, उसके साइड इफेक्ट सेम होते हैं। ओरल आयरन में देर इज नो पॉइंट इन, यानी कि आइब्रेट फॉलिक से अगर वो सेंगोबायोन में भी चेंज कर रहे हैं, तो जिसको ओरल आयरन सूट नहीं की, कंसिडरिंग द साइड इफेक्ट्स, या जैसे किसी ने ब्लैक कलर्ड स्टूल्स की बात की या नोजिया की बात की या वो सारा, तो उसको हर किस्म के ओरल आयरन से सेम ही इफेक्ट आए। ठीक है, बिकॉज एक्सक्यूज मी, क्योंकि वो बॉडी के अंदर जिस कंपाउंड के साथ मिल रहा है, अगर वो उसके अंदर इंडाइजेशन कॉज कर रहा है, तो सारी ओरल आयरन कॉज करेंगी। सो दिस इज नॉट अ ट्रीटमेंट कि अगर वो फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट फीफॉलविट ले रही है और उसे नोजिया हो रहा है और नेक्स्ट विजिट पे आप उसे कहते हो चलो लेट्स चेंज द मेडिसिन, मे बी सम अदर मेडिसिन विल सूट यू, तो आप उसको फीफॉलविट की जगह आप उसको दे दोगे आइब्रेट फॉलिक, तो वो आइब्रेट फॉलिक उसको सूट कर जाएगी। देर इज नो पॉइंट, क्योंकि जिसको ओरल आयरन सूट नहीं की, उसके स्टमक में जाके जिस कंपाउंड के साथ वो मिल रहा है वो ही उसको सूट नहीं कर रहा, और हर ओरल आयरन ने वहां जाकर यही करना है, एक्सेप्ट के माल्टोफर। ये मैं आपको एग्जैक्टली देके बता दूंगी, क्योंकि ओरल आयरन की भी सारी फॉर्म्स की कंपोजिशंस आपको डिटेल में पता होनी चाहिए। माल्टोफर के अंदर ये कोई और कंपाउंड होता है, वो कंपैरेटिवली वो आप चेंज कर सकते हो। हाँ मैं बताती हूँ उसके अंदर फिर, लेकिन यही होता है कि माल्टोफर की फिर डोज डबल होती है, मतलब वो फिर उसकी एब्जॉर्प्शन कम होती है कंपैरेटिवली। तो इसलिए ओरल आयरन अगर सूट नहीं की, तो उसकी ये ट्रीटमेंट नहीं है कि आप उसका मेडिसिन बदल दो, फिर उसकी यही ट्रीटमेंट है कि फिर आप उसे IV दो। ठीक है। हाँ जी, कोई कुछ बोला था बीच में। So I was telling you to get to know the pathophysiology of absorption of oral iron, diet, exact diet, किसमें कितना आयरन है, you need to know the oral iron के brands, आइब्रेट फॉलिक में कितना एलिमेंटल आयरन है 100 mg, अगर आइब्रेट फॉलिक में है, सेंगोबायोन में 30 mg है, किसमें कितना एलिमेंटल आयरन है, ये मैं आपको खुद से बनाकर नहीं बता रही, वाकई ऐसे ही है। और इसी तरह फीफॉलविट में कितना है, जो भी आप प्रिस्क्राइब, जब पेशेंट अनीमिया का अगर आ गया ना एग्जाम में, आपको उसके एब्जॉर्प्शन से लेके आयरन की ओरल ब्रांड्स की इंफॉर्मेशन, उसके अंदर कौन सा फॉर्म है, वो नोजिया क्यों कॉज कर रहा है, अंदर जाके वो जिस कंपाउंड से मिल रहा है, इफ शी इज नॉट कंप्लायंट, इफ पेशेंट इज परसिस्टेंट कि उसने ओरली आयरन लेना है बट उसको नहीं सूट कर रहा, तो फिर आप क्या करोगे, इफ यू शिफ्ट हर टू माल्टोफर जिसका सिरप होता है, सिरप के अंदर बहुत ही कम एलिमेंटल आयरन होता है, बट यू आर गिविंग टू दैट पेशेंट बिकॉज उसको कोई और गोलियां सूट नहीं की, एंड यू आर गिविंग माल्टोफर फॉर एग्जांपल, तो फिर माल्टोफर की इतनी कम एब्जॉर्प्शन में आपको BD में देना पड़ता है। तो वो चीज। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप IV फॉर्म में आ रहे हो, तो IV के अंदर कौन कौन सी फॉर्म्स है, कार्बोक्सी माल्टोज है और दूसरी वाली जितनी फॉर्म्स है, सुक्रोज और वो सारा, वो सब आपको बताना चाहिए कि आप किस तरीके से दे रहे हो, कितनी डोज दे रहे हो, तो वो सारा। और रिएक्शन के चांसेस दे, IV आयरन में देर आर वेरी वेरी, रिएक्शन इज वेरी वेरी रेयर बट इट कैन हैपन अगेन, तो इसलिए हम हॉस्पिटल सेटिंग में करते हैं। और फिर जिसमें ब्लड लगाना है, तो ब्लड क्यों लगाना है, ब्लड लगाने की तो कोई वजह ही नहीं है,
ब्लड तो सिर्फ उसमें लगाना है जिसमें वाकई ये सिम्टोमेटिक पेशेंट है, नंबर 1, या फिर वो बिल्कुल डिलीवरी के करीब है, मे बी शी इज इन लेबर और शी इज एट 30 श्योर फॉर डेट्स 37 वीक्स, और आपको लग रहा है अगले 2 हफ्तों से पहले उसकी डिलीवरी हो सकती है, या फिर उसके अंदर जिसके जो कि पोस्टपार्टम हेमरेज के साथ आपके पास आ गई है पेशेंट। तो इन 2-3 वजूहात के अलावा और कोई वजह है नहीं ब्लड लगाने की। सो एग्जाम के अंदर ब्लड लगाने के लिए भी यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर। जैसे मैंने आपको पहले सिम्टम्स की बात की कि अगर किसी पेशेंट में आप सिम्टम्स को देख के ब्लड का डिसीजन ले रहे हो तो आपको जस्टिफाई करना होगा कि वो सिम्टम वाकई ऐसा सिम्टम है जिसकी वजह से अनीमिया में ब्लड लगाया जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अनीमिया में जो सिम्टम हो जाता है ना वो भी बहुत रेयर होता है। अगर आप अपने वार्ड्स में भी देखो तो अनीमिया सिम्टम्स के ऊपर किसी को ब्लड कम ही लग रहा होता है। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि 3 HB पे भी एसिम्टोमेटिक पेशेंट बैठी हो सकती है। Chronic anemia जो होता है does not cause symptoms. Symptomatic anemia is again not a usual thing to face. However, it is there. You have to prove that symptoms are really indicative of blood transfusion. और अगर वो blood transfusion के हैं तो फिर आप उसमें फिर लगा. And then again, when you're talking about blood transfusion, you need to know exactly, obviously, blood group monitoring, cross matching, और उसके बाद आप उसका करोगे. And always remember, if you are giving her blood, then उसके अंदर आपने अनीमिया में जब आपने ब्लड लगाया किसी पेशेंट में तो आपने जो है उसके बाद यू यू नीड टू बी श्योर कि आप जब अगले दिन गए हो पेशेंट सिम्टम्स हैव टू इम्प्रूव। इफ दे आर नॉट इम्प्रूविंग इसका मतलब ये है कि आपने गलत इंडिकेशन पे ब्लड लगा दिया, या तो सिम्टम्स अनीमिया की वजह से नहीं थे या वो कार्डियक पेशेंट है। क्योंकि अगर वाकई अनीमिया की वजह से सिम्टम्स है वो ब्लड से एकदम से रिवर्ट होते हैं, ठीक है, चाहे HB जितना भी हो उसका। तो ये तो ये वाला है, ठीक है। अभी हमारा वैसे अनीमिया का टॉपिक बिल्कुल कवर नहीं हुआ। आई थिंक इट विल बी ग्रेट अगर हम एक क्लास और अनीमिया की रख लें जिसके अंदर हमारे जो बाकी के प्रेजेंटर्स हैं राफिया और रुखसाना शायद आ जाए नहीं, या तस्निया megaloblastic anemia, and then we'll discuss more about management of anemia, especially the IV transfusions, और oral iron को और ज्यादा डिस्कस कर लेंगे। ये सब आप भी पढ़ के आना। तो क्योंकि बात ये है कि अपेरेंटली सुनने में बड़ा इजी लगता है एनीमिया कि चलो सिम्टम्स है तो ये कर दो, नहीं है तो ये कर दो, और हाउ और डिफरेंट सिनेरियोज। मैंने अभी तो सिर्फ 28 वीक्स पे आपको बड़ा इजी सा सिनेरियो दिया, 28 वीक्स पे 8 HB का एसिम्टोमेटिक एंड शी इज नॉट कंप्लायंट, तो लेकिन उसको भी आंसर कैसे करने हैं। अप्रोच ऑफ तस्मिया वाज वेरी गुड, मे बी शी विल पास बिकॉज शी वॉज वेरी, जिसे कहते हैं ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ शी आंसर्ड के आई वुड लाइक टू नो द कॉज ऑफ एनीमिया, एंड देन वो जवाब ठीक था। बट अगर आप उसको फिंगर टिप्स पे इसी तरह याद कर लो कि शी इज एट 28 वीक्स, शी हैज 12 more weeks to go, cause of anemia is iron deficiency, she is not compliant and she is asymptomatic, I will go for oral iron। तो एग्जामिनर के बहुत सारे सवालों का जवाब आपकी इस एक स्टेटमेंट में मिल गया। एंड देन यू विल एक्सप्लेन टू हर हाउ विल यू गिव हर ओरल आयरन अलॉन्ग विद गुड डाइट। डाइट पूरी बोलनी है, उसके बाद आपने बोलना है कि ओरल आयरन कौन सी वाली, फेरस सल्फेट फॉर एग्जांपल आप दे रहे हो विद एलिमेंटल आयरन दिस मच BD में, BD में देके 10 डेज के बाद आप HP रिपीट करा के उसे मिला के आपने देखा her HP is improving, which means she's now compliant. You'll continue 2 weeks बाद दोबारा बुला लो, and then you'll continue for 1 month BD iron, और उसके बाद आप एक HP 1 महीने बाद रिपीट कराओगे, which according to you should be more than 10.5 or 11, and you'll continue with OD iron, और फिर उस तरीके से आप उसको टर्म तक ले जाओगे। और फिर जो बाकी से, अच्छा, और उसके अलावा कल फिर कल तो नहीं, हम अगली क्लास अभी डिसाइड कर लेते हैं एनीमिया की कब कर लेंगे। उसमें ये है कि हम different scenarios, maybe early pregnancy, maybe a term, etc etc, तो अभी anemia की क्लास और होनी है, ठीक है। कोई क्वेश्चन अभी तक तो पूछ ले, टाइम हो गया हमारा जी। ठीक है, तो आई थिंक अभी तक जितना हमने किया है वो आपको हिस्ट्री एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन और आज वाला सिनेरियो समझ आ गया जी सना? मैम जो इंजेक्टेबल आयरन है मैम उनकी डोजेस डिफरेंट है ना, वो सारा हम जैसे डिस्कस करेंगे अब बिकॉज अब टाइम काफी हो गया, तो हम अगली क्लास ना मैं ग्रुप में ही बता दूंगी, वो हम कर लेते हैं एक बीच में एक्स्ट्रा, ठीक है। मैम ओके मेरा एक क्वेश्चन है, लेकिन वो मैंने ओपीडी में एक पेशेंट देखा था उससे रिलेटेड है, जी वो मैंने थोड़ा जी पूछना सिद्रा। था। मैम पेशेंट हमारे पास 20 वीक्स पर आई थी और वो खुद नॉन केस थी थैलेसीमिया की। अब उसने जो है उसकी
बच्चे की टेस्टिंग उसने कराई थी, CVS पे जो है ना वो थैलेसीमिया मेजर आ गया था और वो टर्मिनेशन करा रही थी, तो 20 वीक्स पे वो लो लाइंग प्लासेंटा के साथ आई थी। तो फिर मैम हमारे पास मोड ऑफ डिलीवरी इस पेशेंट का क्या होगा? फिर से पूछो, सॉरी बीच में कट गई आपकी आवाज, मुझे आवाज ही नहीं आई जी। मैम हमारे पास एक 20 वीक्स पे पेशेंट आई थी, वो खुद थैलेसीमिया था और उसका भी जो बच्चा है वो थैलेसीमिया मेजर आया है CVS पे। कितने तो वीक्स पे फिर है? अब वो टर्मिनेशन कराना चाह रही थी और उसका जो अल्ट्रासाउंड पे था वो उसमें था कि लो लाइंग प्लासेंटा दिया हुआ था 20 वीक्स हाँ पे मैम। ठीक है, 20 वीक्स पे तो लो फिर मैम लाइंग इसका मोड ऑफ प्लेसेंटा। डिलीवरी क्या होगा? देखो एक चीज तो ये है कि 20 वीक्स पे जाके डायग्नोज 20 वीक्स पे क्यों हुआ थैलेसीमिया मेजर। अगर वो पेशेंट शुरू से ही डायग्नोज, इफ शी वाज थैलेसीमिया माइनर, तो वो तो शुरू में पता चले, हस्बैंड का कराओ और फिर बेबी का फौरन कराओ, तो आपको पता चल जाएगा कि वो मेजर है, तो अर्ली टर्मिनेशन भी बेटर। 20 वीक्स पे लो लाइंग प्लेसेंटा एग्जाम के अंदर देखो, इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग थिंग। मेनी पीपल ट्राई टू एक्सपेल द बेबी विद इंडक्शन एंड ऑल। तो वो भी जाता है, बट अगेन लो लाइंग प्लेसेंटा में इट कैन ब्लीड मैसिवली। अगर आप सेव रहना चाहते हो तो आप उसको स्टॉटमी का भी कह सकते हो। यस मैम, किसी और मैंने ने इस मैम पे यही बोला कमेंट था। करना है तो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि देखो एग्जाम में आपने ओवर एंथुसियास्टिक नहीं होना। अगर 20 वीक से पहले लो लाइन प्लेसेंटा आ जाता है, विच मे बी एट 18-16 वीक्स, तब तो आप एक्सपल्शन करके प्रोसीड इवैक्यूएशन कर सकते हो। असल में ये क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड टू एनीमिया और थैलेसीमिया, इट्स अबाउट टर्मिनेशन एट 20 वीक्स। अगर ये 20-22 वीक्स पे प्रीवियस 2 होती हाँ ये तो भी तो स्टॉटमी जस्टिफाइबल थी, प्रीवियस 3 होती तो भी जस्टिफाइबल थी, लो लाइंग प्लेसेंटा है तो भी आप कंसिडर कर सकते हो। जी नाजिश, नाजिश ने क्या कहना है? मैम इसमें हम जो है आयरन की जो भी पेशेंट होगी एनीमिया की, हम उसको डीवॉर्म का मैम बोल सकते हैं एग्जाम में कि हम बोलना है, उसको बोल दें, परमॉक्स बिल्कुल। देंगे टैबलेट? ठीक है। अच्छा देखो, बात ये मेरी है वैसे एक एडवाइस है, जो आप क्लिनिकली प्रैक्टिस करोगे ना उसमें तो आप दे ही देना। एग्जाम में आप स्टूल एग्जामिनेशन करा लो, अगर स्टूल पे शक आता है तो देना, वरना इन चक्रों में ना पड़ो। ठीक है, जी मैम, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, चलो अब आप लोग भी अपने कुछ क्वेश्चंस लिख लेना अबाउट एनीमिया, और हम कंटिन्यू इंशाल्लाह करेंगे आई थिंक बिफोर हम संडे अगली। Yeah, baby, you should go where you wanna go, baby, why you here? Yeah, nobody gonna change, but no for the now, yeah. Like the minute, kau tipu saya dan kau pergi, yeah. Jangan kau balik, abuti banyak kau di sini. Kau balik semua rasa sayang yang saya kasih untuk kau. Kau ambil hati lalu kau patahkan semua, let it go. Nona, coba untuk mengerti apa yang saya dapatkan, hanya luka dan sakit. Dan sekarang semua sutra berarti, kau bikin macam samakan hati. Kau coba bermain with your own way, kasih tinggal rasa yang semua mati.